Yes, ma'am. Because of some technical problem, the ma'am was not able to continue that lecture. So I'm taking that lecture, and just give me a few minutes. I'm just going to present my screen. Just give me a few Sure, ma'am. minutes. Sure. Please let me know whether you are able to see my screen or not. Let me give her. Is it visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you see the slides of organizational behavior? Yes, ma'am. Okay, okay. Thank you so much. So I'm going to teach you this organizational behavior. First of all, just I want to know that what do you understand by the term organization? Whenever we use this term organization behavior, organization behavior is a secondary thing. First of all, I want to know what do you mean by the term organization? What do you understand? Is that professional behavior? How you react on professional life? Hello. Okay, okay. Anybody Um, else? Anybody else who um, want to give reply? like something should be organized in a like way, like एक proper way होना चाहिए, like arrange करने का, like easily way में. That's where. Okay, so you want to say that there should be a systematic way of doing the things. Yeah, that's it. Okay, fine. Now, what do you understand when you have understood the term organization? That what is organization? So, based on your understanding only, what do we mean by the term organization behavior? See, here I'm not asking about any definitions. I'm just asking about your understanding. What do you think? What you people think? What you people think that what can be the meaning? I mean, in a layman language, what is the meaning of organization behavior? Anybody? And something like आप कैसे behave करते हो Very, organizations में, very good, yeah. very good. We are very good. Let us discuss something in it there. Whosoever has answered, I mean, I think Somit is there. So you absolutely correct. Now, I'm going to discuss this topic organization behavior, and under this, I'm going to cover the overview of organization behavior, the meaning of organization behavior, importance of organization behavior, what are the fields, what are those different fields which are contributing to the organization behavior, and the applications of organization behavior in industry. So let us see it one by one. The first question itself is, what is organization? So the question, before understanding or before moving ahead, that what do we mean by the organization behavior, we have to understand that what do we mean by the term organization. What is organization? First we have to understand this term, then only we can discuss about the other things. So the term organization behavior, or sorry, the term organization means when we are using the combination of different resources. Now, what can be those resources?
The resources can be like your land, your labor, your capital, and these resources we use in terms of factors of production. But you know, there can be other resources too. The other resources like your people, your employee of the organization, the technology which you are using to produce that goods and services, that can be also the resources. Because what we are doing with the help of our employee, with the help of that raw material, with the help of that technology, we are producing the different goods and services. So now, once we have understood the meaning of organization, so the example of organization, that can be number of examples, that be it in the private sector, be it in the you can say public sector, be it the profit organization or non-profit organization. So the organizations are those which brings the different resources together. Here it is written, which brings together people and resources to produce goods and services. And the example of these organizations are the business, the hospital, the colleges, or the retail store. Is there any doubt in this concept regarding the organization? No, ma'am. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Because it's very simple. Only we have to understand this thing, that the organizations are those which are fulfilling the needs or the demands of the society, and this demands can be fulfilled either in way of producing the goods or either in producing the services. So it can be any way what you are doing by using the different resources. You are producing the goods and services, and these goods and services, why we are producing? Because we have to fulfill the needs or the demand of the society. Is it clear to all of you? So I'm moving ahead. Now let us give the introduction to the organization behavior. As one of you have said it very correctly, that how the people behave in organization, what they feel, how they behave, that I think there is someone who want to join this class. Let me see, let me admit him. See, so what we were discussing is that how the people behave in an organization, why they behave, what they think, all these things are discussed in the organization behavior. Because I mean, you can understand I mean, you all can understand very well that organization doesn't behave. I mean, the buildings, the technology, they cannot behave. The people behave. And since the employee are the representatives of the organization, then how they are behaving, why they are behaving, what is their thought process, what is their feeling, it has a great impact on the organization. Let's say, for example, if there is a person, if there is some employee of organization XYZ, and he or she is the call representative, and if you just call him and he behaves you very rudely, I mean, doesn't give any attention to you what you are asking, then you will not develop the perception to that person only, to that specific person only. But what you will perceive, that fine, this organization is not good, they don't know how to deliver the service, they don't know how to entertain the customer, they don't know how to behave with the person who is calling them. Now why it is that we are saying to that person that he doesn't, I mean, to that organization, although organization was not there, the person who was the representative of that organization, be it CEO,
or be it at the lower level, that person is interacting with you, but you have developed that perception for that organization, that for fine, I'm not going to take services or the product from this organization anymore in my future, because the employee of this specific organization, they don't know how to behave with the customers. So that's what I'm saying, that the organization doesn't behave, but the employees, the people of the organization, they behave. And to study that how they behave, why they behave, that what we term the organization behavior. See, in an organization, if there are two persons at the same level, with the same education background, the same, they are working on the same project, still they couldn't, we cannot say that in each and every aspect, like in the thinking process, in the feeling process, in the way they are performing their task, they would be alike in nature. No, you can't say that. It is not there, because even in case of a siblings also, the two-person cannot be alike in nature 100%. Somewhere, I mean, they can act differently how they feel, they can act differently how they think, so somewhere there's a difference. So that's what I'm saying, that the no if that the previous example was like how the customer will feel. Like if we are taking the example of one organization, let's suppose the ABC organization, even in that ABC organization, forget about the different hierarchies, forget about the different nature of jobs or the task. Just think about this process, that some of you might have the experience of this when you have done some internship work, or if you have served some organization, that though the people are having the same educational background, though the people are working on the same level, but still they do not behave in the same way. What does I mean? I just like to further elaborate on that. The thing is that maybe the some person, like if let's take my example only. If I'm there, if I'm the person who is net GRF qualified or the PhD, and there is another person who is having the same qualification, and we both are at the same level, that is, we both are at the assistant professor, still there is a high probability that way, like the way I'm delivering the lecture, it is not mandatory the other person will also deliver the lecture in the same way. Or if he or she is also delivering in the same way, might be the thinking process would be different. Like if somebody is appreciating me, I'm feeling overwhelmed, I'm feeling, oh fine, the person is appreciating me, but the other person who is having the same education background and entire thing, like I mean the hierarchical level, if it is same, keeping the others factor constant, still if somebody is appreciating that person, maybe he or she doesn't respond, he thought, okay fine, I'm just doing my job. I mean, why should I feel okay if somebody complimented, it's okay. If somebody criticize me, I'm okay with that also. So there are, I mean, way people behave, that is entirely different. The way people think, the way people feel, that is entirely different, and that's where the organization behavior comes into the picture. Sorry, I hope it is clear to all of you. Yes, ma'am. Can anybody? Thank you. Can others respond, please? Are they getting me what I'm trying to teach? Yes, ma'am. Okay, okay. Thank you so much. See, if anybody is facing problem, I mean, if anybody is like that they want that I should repeat the same thing in Hindi also, please let me know. Don't hesitate, because see, we have to spend at least 2 years together. If we are not comfortable with each other, then it is of no use. However efforts I'm putting, it is of no use until unless, because my motto is that you should understand. You are the one who have to understand the entire concept, and if you are not understanding,
this all thing is useless. It is of no purpose. कोई ऐसा है जिसको इंग्लिश समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, प्लीज टू बी, I mean there's nothing to be feel embarrassed. It's okay. Somehow we all face this problem. Is there anyone? Can you explain them again? Okay, fine. That's what I'm asking कि मैं उसको रिपीट कर. देखिए, what I'm trying to say, first what I have discussed. क्या डिस्कस किया? पहले हमने समझा ऑर्गेनाइजेशन क्या है. What is organization? देखिए, जब हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपने बहुत सारी देखे होंगे, जैसे आपने हॉस्पिटल्स देखे, आपने कॉलेजेस देखे, आपने रेस्टोरेंट देखे, अब कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस देखे, कुछ प्राइवेट बिल्डिंग्स देखी. हम उनको ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हम मैनेजमेंट में समझें तो ऑर्गेनाइजेशंस वो जगह है जहां पे सोसाइटी की जो नीड्स है या जो डिमांड है वो फुलफिल की जाती है, वो पूरी की जाती है with the help of different resources. डिफरेंट रिसोर्सेस को यूज करके हम सोसाइटी की नीड या डिमांड को फुलफिल करते हैं. अब और समझते हैं इसे डिटेल में. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, सोसाइटी की डिमांड है कि भाई उनको बेटर हेल्थ केयर मिले या बेटर मेडिकल फैसिलिटी मिले. फाइन, सोसाइटी की डिमांड है. तो क्या किया? एक हॉस्पिटल खोल दिया. मे बी वो पब्लिक हॉस्पिटल हो सकता है, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकता है, या फिर आपको लगा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मैं अगर यहाँ पे अपना हॉस्पिटल ओपन करता हूँ तो अब मुझे बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल दूर दूर तक नहीं है, तो सारे पेशेंट्स मेरे पास ही आएंगे. तो आप क्या कर रहे हैं? आपने एक सोसाइटी की नीड या डिमांड जो है उसे आइडेंटिफाई किया, और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन या तो गुड्स प्रोड्यूस करती है. गुड्स का मतलब है बेटा प्रोडक्ट कुछ भी, लाइक मोबाइल और वट एवर इट इज, और योर एफएमसीजी गुड्स, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले लिया, टूथपेस्ट ले लिया, टूथब्रश ले लिया, तो कोई भी गुड्स हो सकता है, या सर्विसेज. जैसे बैंकिंग सेक्टर क्या करता है? कोई गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं करता, दे यूज टू प्रोवाइड सर्विसेज. वो क्या करते हैं? आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द सर्विस. प्रोडक्ट और सर्विस में बहुत डिफरेंस है. ये जब आप मार्केटिंग पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में पता चलेगा, लेकिन यहाँ मैं आपको अभी के लिए बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि प्रोडक्ट वो चीज समझ लीजिए जो टेंजिबल है, जिसे आप टच कर सकते हैं, और सर्विस वो चीज है जिसे आप टच नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी शॉप पे गई और मैंने मोबाइल परचेज किया, तो अब मोबाइल को मैं टच कर सकती, यूज कर सकती हूँ. लेकिन अगर मैं किसी बैंक के अंदर गई और मैंने कहा कि मुझे अपना अकाउंट ओपन करवाना है, तो उन्होंने मेरा अकाउंट ओपन कर दिया, फाइन, आई केम बैक टू माई होम. लेकिन क्या मुझे कोई प्रोडक्ट मिला? क्या उन्होंने मुझे मेरा अकाउंट हाथ में दे दिया कि ये लीजिए, इसको टच, कैन आई टच माई अकाउंट? नहीं. What they are doing, they are providing services. है वो भी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन there is a difference कि पहले केस में मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गई और मुझे एक मोबाइल फोन मिला, that is what, that is a product. सेकेंड केस में क्या हुआ कि मैं बैंक के अंदर जाती हूँ, बैंक में मेरा अकाउंट ओपन किया जाता है, and that is the service. यानी बैंक मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. Are you getting me? Is that clear? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है बेटा? Yes, ma'am. ओके, योगेश आपको क्लियर है? योगेश, इज इट क्लियर बेटा? हाँ मैम, क्लियर. ओके, थैंक यू बेटा. नाउ लेट्स मूव अहेड. Now what we are discussing, the next thing is your organization behavior. देखिए, अब बात कर रहे थे हम आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की. जब हम बात करें, अब हमें ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया, तो देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है, ऑर्गेनाइजेशन तो बिहेव नहीं कर सकती, हॉस्पिटल तो उठकर बिहेव नहीं कर सकता, बैंक्स तो बिहेव नहीं कर सकती, तो बिहेव करता कौन है? बिहेव वहां के एम्प्लॉइज करते हैं. एम्प्लॉइज इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर से. जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर कौन बिहेव कर रहा है? डॉक्टर्स बिहेव कर रहे हैं, डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं, या जो अटेंडेंट होता है, या जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, यानी आपके नर्सेस हो गए, वार्ड बॉयज हो गए, वो जो स्टाफ है
वो बिहेव कर रहा है कि भाई ठीक है, वो पेशेंट्स को कैसे ट्रीट कर रहा है, बहुत कर्टियस, बहुत प्यार से ट्रीट कर रहा है क्या, उनका ख्याल रख रहा है, या फिर ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ हॉस्पिटल्स में ये होता है कि आप देखते हैं, आप जाते हैं और बहुत रूडली बिहेव किया जाता है, तो हमारा परसेप्शन क्या हो जाता है कि नहीं, स्पेसिफिक हॉस्पिटल में मत जाइएगा, वो वहां पे बहुत खतरनाक होता है, वो दोज डॉक्टर्स आर वेरी रूड। अभी जैसे कोविड-19 में आपने देखा कि है ना, आपको ये आपने देखा होगा कि बहुत सारी न्यूज आई कि दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे थे जहां जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऐसे थे या कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे थे जो पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे, या दे आर नॉट गिविंग देम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे। प्रॉपर ट्रीटमेंट मतलब उनको जरूरत है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तो नहीं दे रहे, तो क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल उठ के बिहेव कर रहा था या प्राइवेट हॉस्पिटल उठ के बिहेव कर रहा था? नहीं, दोस डॉक्टर्स वर देयर, दोस हु आर बिहेविंग, वो डॉक्टर्स थे जो बिहेव कर रहे थे। तो हमको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या समझना है, हमको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में ये समझना है कि कुछ लोग जो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं और कुछ ऐसे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में सम पीपल आर देयर जो अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। तो ये बिहेवियर में डिफरेंस क्यों है, ये एम्प्लॉइज जो है डिफरेंटली बिहेव क्यों करते हैं? ये एम्प्लॉइज डिफरेंटली बिहेव क्यों कर रहे हैं? या फिर देखिए, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत अच्छा फील करते हैं, आपको बहुत प्राउड होता है, आपको लगता है कि नहीं, आई एम वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन और ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है। लेकिन हो सकता है आपका फ्रेंड हो या आपका कलीग हो, उनको लगता हो कि नहीं, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ बट आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन से, मैं तो कहीं और जॉब सर्च कर रहा हूँ। दो सेम मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन में आप दो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए जो फील कर रहे हैं आप लोग वो डिफरेंट है। एक बहुत हैप्पी है, बहुत सेटिस्फाइड है, दूसरा पर्सन वो हैप्पी नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर बस यही डिस्कस करना है कि जो पीपल है, जो एम्प्लॉयज है, हाउ दे बिहेव, वो कैसे बिहेव करते हैं, व्हाई दे बिहेव, वो ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, यानी कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ बहुत मतलब बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस क्यों है बिहेवियर में, ये हमको समझना है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। आई होप इज इट क्लियर? आप समझ आए बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। प्लीज डोंट हेजिटेट। देखिए, जब आपको लगे कि मैम प्लीज रिपीट इट इन हिंदी, देखिए आई डोंट नो बिकॉज मुझे नहीं पता, देखिए आप लोगों के बारे में इट्स लाइक हमें अगर 2 साल बेटा एक साथ निकालने हैं तो इट्स वेरी नेसेसरी कि हम लोग एक दूसरे से कंफर्टेबल हो। मतलब किसी भी चीज के लिए ये ना हो कि मैम यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई विल रिपीट इट 100 टाइम्स। मुझे अगर वो चीज रिपीट 100 टाइम्स भी करनी पड़ती है, आई डोंट माइंड इट, बट द अल्टीमेट गोल इज दैट कि जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आप समझ जाए। तो देखिए एक बार यहाँ पे जो लिखा हुआ स्लाइड के अंदर वो देखते हैं। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द कलेक्शन ऑफ पीपल विदिन दैम टुगेदर कंप्राइजेस द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यानी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कौन कैसे बनता है, या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या कंप्राइज करता है। तो इन्होंने बोला कि पहली चीज होनी चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन, फाइन, एंड द नेक्स्ट थिंग इज द कलेक्शन ऑफ पीपल, या हम यहाँ पे पीपल लिख सकते हैं, द कलेक्शन, यू नो वेरी वेल, द कलेक्शन ऑफ पीपल। इज दैट क्लियर बेटा? यानी Yes, ma'am. आप किसकी स्टडी कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन की, एंड द कलेक्शन ऑफ पीपल विद इन दैम। ऐसा नहीं हर एक ही नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि कस्टमर की स्टडी कर रहे हैं, नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स की स्टडी कर रहे हैं, नो, वी आर नॉट डूइंग दैट। व्हाट वी आर डूइंग, कलेक्शन ऑफ पीपल विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग, वो पीपल जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं हम उनको क्या बोलते हैं? हम उनको एम्प्लॉयज बोलते हैं। एंड दिस टुगेदर मेक्स योर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. ओके ओके,
I'm not getting response from anyone. Please reply. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. So shall I move ahead? Yes. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Now, what is OB? What is organizational behavior? This is the study and application of knowledge. किस चीज की स्टडी है और किस चीज का एप्लीकेशन? नॉलेज, जो आपने स्टडी करके जो आपने नॉलेज करी, ये किस चीज के बारे में है? कि हाउ पीपल एक्ट, लोग कैसे एक्ट करते हैं विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, लोग कैसे एक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बनाता है। यानी अगर हमें सिंपल वर्ड्स में कहना हो तो आप ये कह सकते हैं कि उस चीज की स्टडी, ओबी इज द स्टडी, जहां आप ये देखते हैं कि लोग जो एम्प्लॉयज हैं, जो पीपल हैं, वो पीपल कौन है? वो एम्प्लॉयज है, क्योंकि हम उनकी बात कर रहे हैं जो विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन है। वो लोग कैसे बिहेव करते हैं और कैसे मतलब एक्ट का मतलब है यहाँ पे कैसे एक्ट करते हैं, और सिंपली एक्ट का मतलब हो गया आपका बिहेव करना, कि कैसे बिहेव करते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके। सी, सो इफ आई आस्क यू कि क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कि व्हाट कैन बी द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो आप लोग क्या क्या बताएंगे इस बारे में? मैम परफेक्ट यूज ऑफ यूटिलाइजेशन लाइक रिसोर्सेज, क्योंकि अगर लोग बाग अच्छे से आपस में बिहेव करेंगे तो वो एक रिसोर्स को अच्छे से भी यूटिलाइज कर पाएंगे, और टाइम की भी कंज्यूम होगा, लाइक टाइम सेविंग्स भी होगी, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपेंड भी हो जाएगा, उनका बिजनेस ग्रोथ भी इंक्रीज होगी, टाइप का। ओके, एनीबडी एल्स? कोई और कुछ शेयर करना चाहे? एनीबडी एल्स? दीपक, आप कुछ बताना चाहेंगे बेटा? मैम, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छा बिहेव करेगा तो उसके साथ में गुड्स थिंग्स, मतलब और मोर कस्टमर जुड़ेंगे, एक चैन बनती जाएगी उनके लिए, बहुत अच्छा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? योगेश? मैम सेम। ओके, और कोई कुछ बताना चाहेगा? कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? एनीथिंग जो आप लोगों को लगता हो, जो अब तक आप लोगों को समझ में आया हो? एनीथिंग विच यू वांट टू से, जो भी आपको लगता है कि हो सकता है ये इंपॉर्टेंस हो सकता है। भाई अभी तक हमने ये समझ लिया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? एनीथिंग विच यू थिंक कि ये हो सकता है मैम इसलिए पढ़ रहे हैं? हाँ जी, सुरजीत, एनीथिंग बेटा फ्रॉम योर साइड, एनी इनपुट फ्रॉम योर साइड, क्या लगता है आपको? Madam, to know हाँ the हाँ बिल्कुल, points, बोलिए बेटा। to know the relations, how to maintain the relation between employees and their customers or their serving partners, like that. Good, very good, very good. Now, Divya, can you say something? Divya, are you getting my voice? आपको मेरी आवाज मिल रही है बेटा? दिव्या, then please आप एक बार लॉग आउट करके फिर लॉग इन कीजिए, बिकॉज यू आर हैविंग द नेटवर्क प्रॉब्लम।
क्योंकि बाकी को आवाज मिल रही है बेटा और आपको आवाज नहीं मिल रही है, इट मीन्स यू आर हैविंग अ नेटवर्क प्रॉब्लम। तो एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कीजिए। नाउ महेश क्या मैं पूछ सकती हूँ बेटा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है इस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की? ऑर्गेनाइजेशन और ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की वजह से ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में एक ट्रस्ट और एक रिलेशन अच्छा बना हुआ रहता है। गुड, वेरी गुड। देन योगेश जी मैम। ओरिजिनल बिहेवियर और जो इम्प्रूव होते हैं उसमें दोनों में उनकी जो थिंग होती है गुड होती है, क्योंकि जो होता है एम्प्लॉयज का दिमाग रहता है कि एम्प्लॉयज है कैसे काम करेंगे और कैसे इस सर्विस को आगे बढ़ाएंगे। गुड गुड, मतलब यू पीपल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज हार्डली वी आर लेफ्ट विद दिस 7 more minutes, let me ask you some few more things. See, here it is given. We will discuss them in detail later on, but let me show you the slide. So what I have written over here is that the importance of OB is create sustainable competitive advantage. Right? The next thing is that individual component, and the last one is organizational component. The first one is create sustainable competitive advantage. Now, when I'm saying about the create sustainable competitive advantage, it simply means like हम लोग हमेशा in human resource जो बहुत अच्छी organizations है, those who are very good organizations, I don't know आप में से कितनों को experience है या नहीं, they always treat their employees as an assets. देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी, मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ 5 इयर्स का, तो ये चीज थोड़ा बहुत पता है। क्योंकि एम्प्लॉय के एम्प्लॉय एसेट्स होता है कंपनी के लिए। आप अगर एम्प्लॉय के साथ ही अगर मिसबिहेव करोगे तो दे ठीक से वो काम नहीं कर पाएंगे। तो वो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक कंपनी के लिए, जो एम्प्लॉय के साथ मतलब बिहेवियर अच्छा रखता है। नहीं तो उससे काम निकालना, मतलब इन शॉर्ट काम निकालना अच्छी तरह से बिहेव करके, क्योंकि सब एम्प्लॉय सेम नहीं होता है। कोई बहुत टैलेंटेड होता है, कोई थोड़ा मतलब मिडिल होता है, तो हाँ एवरेज होता है। तो सबके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग रख के, रैपो रख के अपना और मतलब कंपनी को आगे बढ़ाना, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए हम जो जिनको नहीं पता है, जो एक्सपीरियंस नहीं है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ये कहा जाता है कि जो एम्प्लॉय है। मैडम आई हैव ए क्वेश्चन, बट मैडम ज्यादातर कंपनी जो है वो एम्प्लॉयज को एसेट्स नहीं मानती है, उनसे मतलब वो मैंने ये देखा है, मेरा भी 3 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है ज्यादातर कंपनी जो है वो एसेट्स नहीं मानती है, उनसे काम निकाल के बस उनको मतलब बस उससे मतलब होता है। तो फिर इससे मतलब इसका क्या रीजन है मैडम, और इसका कैसे इसको हल किया जा सकता है, प्लीज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा? मैं थोड़ा इंटरप्ट करूं, थोड़ा इंटरप्ट करूं? नहीं, तुम ठीक बोल रहे हो शुरुजीत, ये सही है। मैंने भी बहुत सारे जगह पे काम किया है, पर वही तो सब नंबर 1 एक ही होता है। ओके, जो अच्छा काम करके सबके मतलब एक नेगेटिव चीज के अंदर भी एक पॉजिटिव चीज होता है। ओके, खराब एम्प्लॉय भी होता है, मैं नहीं बोल रही हूँ खराब एम्प्लॉय नहीं होता है। तो सबके साथ अगर मतलब सबका अगर अच्छा चीज लेके अगर कोई कंपनी आगे बढ़ता है तो वही एसेट्स होता है। तो एक नंबर वही हुआ ना, जैसे बाजार में बहुत सारा बैंक है, हाँ 10 बैंक है, पर टॉप एक ही है, तो उसका एम्प्लॉय उसके साथ वहां पे जाओगे ना, एम्प्लॉय के साथ इतना अच्छा बिहेवियर किया जाता है, मतलब दे आर रियली एसेट्स, मतलब देख के लगता हाँ मैं यहाँ पे काम करूँ।
मुझे ये लगता है, मैं पर्सनली मैंने मैं कर चुकी हूँ, मैं बहुत सारी जगह पे इंटरव्यू दे चुकी हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में भी इतना अच्छा बिहेवियर करता है ना, हाँ देख के लगता है वही तो मैंने एसेट्स है, बिहेवियर एसेट्स है। तुम काम नहीं करो ना करो वो अलग बात है, पर तुम अगर अच्छे से किसी के साथ यही नहीं कर पाओगे तो मतलब वही तो एक कंपनी का एसेट्स होता है, मुझे लगता है पर्सनली, और मैंने ये फेस भी किया है ये चीज को। She is right. Surjit, let me give you an example. Why you are also absolutely correct. देखिए, हम सबका एक्सपीरियंस बड़ा डिफरेंट है। हम हो सकता है कि हमें से कोई इतना लकी हो कि वी हैव जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन और हमें ऐसे कलीग्स, ऐसे बॉस मिले कि हमें जब वो जॉब क्विट करना पड़ा तो हमें बड़ा बुरा लगा, वी फील वेरी सैड कि नहीं मेरे को ये लेकिन हाँ, हम सबके कुछ लिमिटेशंस है या कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी थी कि मुझे अगर वो जॉब क्विट करना पड़ा तो मुझे बड़ा बुरा लगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी है लाइफ में कि कुछ जगह आप काम कर रहे होते हैं और आप प्लान कर रहे होते हैं, मतलब साइमल्टेनियसली आप कोई और जॉब सर्च कर रहे होते हैं। Why? Because you know that management or that organization is exploiting you. वो आपको exploit कर रही है। And what they are doing, they are using only means of production. उनको सिर्फ अपने प्रोडक्शन से मतलब है, and more or less they are treating you like a machine. They don't care about you. भाई आप जिए मरे, हमें बस हमारा काम चाहिए। Absolutely, absolutely. Thank you. Now let me tell you. देखिए इससे होता क्या है? When I'm saying कि मैं अपने एम्प्लॉइज को ऐसे ट्रीट करूं, डोंट यू फील कि एम्प्लॉय कभी भी लॉयल नहीं रहेगा आपके टूवर्ड्स, कभी भी कमिटेड नहीं रहेगा। अब हमें शॉर्ट टर्म में क्या लगता है कि ओके फाइन, हमारा क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, अरे हमने बहुत प्रॉफिट अर्न कर लिया, बट यू नो सर, मतलब इट इज द फैक्ट कि इफ आई एम नॉट गुड विद समबडी, देन एट द टाइम ऑफ क्राइसिस दे आर नॉट गोइंग टू स्टैंड बाय माय साइड। जब भी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई क्राइसिस आएगी एंड इफ दैट एम्प्लॉय हैज द अपॉर्चुनिटी टू क्विट दैट जॉब, तो वो एम्प्लॉय सबसे पहले वहां से बाहर होगा। वो कहेगा बाहर में जाइए आप, मुझे कोई, व्हाई शुड आई केयर अबाउट यू? When you didn't care about me, why should I care about you? भाई आपने मेरे लिए कौन सा केयर किया था? ये जो लॉयल्टी है, ये जो कमिटमेंट है, ये बहुत बड़ी चीज है बेटा। देखिए, मे बी आपके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट आप बनाते हैं, बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट आप बनाते हैं, लेकिन वो इनोवेटिव प्रोडक्ट भी जब मार्केट में जाएगा तो आपके एम्प्लॉयज, लेट सपोज कि अगर आपकी कोई सेल्स टीम है, वो सेल्स करने जाएगी ना, and if they are not able to convince the customer, yeah they know very well how to convince the customer, but they are not putting that effort. या फिर आपने डेडलाइन दे दिया कि ठीक है आपको सैलरी तब मिलेगा जब आप सिर्फ 10,000 का सेल्स टारगेट अचीव कर लेते हैं। नाउ आई नो कि सुरजीत मुझे मेरी सैलरी तब देगा जब मैं 10,000 का टारगेट अचीव कर लेती हूँ। सुरजीत इज माई मैनेजर, तो आई नो माई केपेबिलिटी दैट आई कैन सेल अप टू 20,000 प्रोडक्ट, बट स्टिल आई विल सेल ओनली 10,000 प्रोडक्ट, क्योंकि आप मेरी सैलरी तो वहां से रिलीज कर दोगे ना, दैट्स इट। मुझे पता है नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आप अंडर परफॉर्मिंग, आप क्या कर रही हूँ मैं, अब मैं अंडर परफॉर्म कर रही हूँ। yes, ये जानते हुए भी कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं अभी और 10,000 एक्स्ट्रा को सेल कर सकती हूँ, स्टिल आई विल बी अंडर परफॉर्मिंग। आप ये जो हमें जो कमिटमेंट चाहिए, ये जो लॉयल्टी चाहिए, ये नहीं है एम्प्लॉइज के अंदर। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, टुमारो आई विल शेयर, और यहाँ पे थोड़ा सा बस मैं बताना चाहूंगी इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट का। इंटेल वाज हैविंग दैट अप्रोच व्हाट यू वर सेइंग सुरजीत, दे वर नॉट इन्वेस्टिंग इन देयर एम्प्लॉइज। उनका ये था कि वी हैव टू अर्न अ प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन एज वेल एज इन द लॉन्ग रन। लेकिन Microsoft, though Microsoft was not the leading company in year 2000, but still they preferred to invest in their employee. उनका सिर्फ ये मानना था ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे काम कीजिए और आपके एम्प्लॉय आपके साथ होने चाहिए। Sooner or later you will be the king in the market, and now today we all know the truth. आज हमें पता है कि इंटेल कहाँ है और आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट कहाँ है। Yes, madam. You are let me now it's already 10:31 because might be आपका सेकंड लेक्चर शुरू होने वाला है। let me